So this is lecture 8 and going to cover the concept of fading. Okay. So most of you know different terms. Okay. So if I talk about this fading, कि जब हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, ओके, एंड जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वो चैनल के थ्रू आगे कंस्ट्रक्ट हो रहा है और यू कैन से वो रिसीव हो रहा है. ओके. सो जो चैनल हमने ट्रांसमिट किया, जब हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, there is a fluctuation in the amplitude of the your radio signal. ओके. जो रैपिड फ्लक्चुएशंस होते हैं, जो सिग्नल आपने ट्रांसमिट किया ओवर द शॉर्ट ड्यूरेशन और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि आप लेट्स से आपने लेट्स से आपने सिग्नल ट्रांसमिट किया 2 मीटर 3 मीटर और लेट्स से 500 मीटर, तो जो फ्लक्चुएशन हो रहा है इनके एम्पलीट्यूड में, उसको हम क्या बोलते हैं? योर फेडिंग. सो फेडिंग इज एन, or you can say, rapid fluctuation of the amplitude of a radio system. So you can see I have written over here. These points are taken from the book Rappaport. So small scale fading, okay, because we are considering the short distance or short time period. Okay, short time period time के लिए वो fluctuate or simply fading is used to describe the rapid fluctuation of the amplitude of a radio short period of time or travel distance, so that the large scale path loss effect may be ignored. Okay, whenever we are calculating this small scale fading or fading, okay, in that case most of the time we consider this large scale path loss effect nearly to zero, because हम long distance के लिए कर ही नहीं रहे, short distance के लिए कर रहे. Fading is caused by the interference or more version of the transmitted signal which arrive at the receiver at slightly different time. So if you remember जब हमने उसको रिव्यू करके देखा था, तो what we were doing in this case at that was the transmitter and the RX. So यहाँ पे उसकी हाइट हमने ली थी HT if you remember, और इसकी ली थी HR. So ट्रांसमिट कर रहे थे सिग्नल व्हेन लाइन ऑफ साइट इज अवेलेबल, और एक हम ट्रांसमिट कर रहे थे व्हेन द is reflected by and receiving. So ऐसे करके हो रहा था. So ultimately you can see you are transmitting from here, but receiver side पे जो हमें मिल रहा है वो इस कुछ टाइम इंटरवल पे मिलेगा obviously. Okay, that case you can consider कि जो आपको रिसीवर पे मिल रहा है वो पीरियड ऑफ टाइम, उसका जो रिसीविंग टाइम है डिफरेंट, जो पाथ ट्रेवल करके सिग्नल आ रहा है वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है. ओके, सो दीज आर दी कॉजेस जिसकी वजह से बोलते हैं कि आपका जो रिसीवर एंड पे इंटरफेरेंस इंक्रीज हो रहा है. सो सेम थिंग इज transmitter signal which arrive at the receiver at slightly different times. These wave called the multipath waves. ओके, सो जो रिसीवर डिफरेंट वेव्स रिसीव हो रही हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मल्टीपाथ वेव्स. दीज आर द कंबाइन एट द रिसीवर एंटीना टू गिव अ resultant signal which can vary widely in amplitude and phase depending on the distance distribution of the intensity and relatively time or wave bandwidth of the transmitted signal. So fading तो हमें पता चल गया क्या हो गया. मल्टीपाथ प्रोपगेशन फेडिंग, मल्टीपाथ फेडिंग कैसे हो गया? डिफरेंट वेव्स आ रही हो विथ स्लाइटली टाइम इंटरवल पे, जो उनके बीच में अराइविंग टाइम है वो स्लाइटली की वजह से भी क्या होता है, हमारे ये
प्रॉब्लम क्रिएट होती है. सो स्मॉल स्केल मल्टीपाथ प्रोपगेशन की अगर हम बात करें, सो द पैरामीटर्स और यू गेट 3 इफेक्ट्स. ओके, फर्स्ट वन इज द रैपिड changes easily, rapid changes in signal strength over a small travel distance or time travel. Okay, time, this is the basic definition of your small scale fading. Random frequency modulation due to variable concept comes here, your Doppler shift. Okay, so Doppler shift आप सभी को पता होगा कि क्या होता है. And third one is the time dispersion echoes caused by the multipath propagation delay. Okay, so these are the 3 important effects हैं हमारे स्मॉल स्केल मल्टीपाथ प्रोपगेशन की वजह से होते हैं. सो मल्टीपाथ प्रोपगेशन कॉन्सेप्ट आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू कि एक सोर्स है, एक रिसीवर है, बट वो डिफरेंट पाथ ट्रेवल करके रिसीवर पे रिसीव हो रहा है. सो उस तरह के प्रोपगेशन को. ओके, नाउ फैक्टर इन्फ्लुएंस स्मॉल स्केल फेडिंग, कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारे स्मॉल स्केल फेडिंग है करते हैं. ओके, सो सबसे पहला ऑब्वियसली यू कैन से मल्टीपाथ प्रोपगेशन. ओके, यू कैन सी मल्टीपाथ प्रोपगेशन क्या होता है अभी. नेक्स्ट वन इज द स्पीड ऑफ द मोबाइल. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द योर फ्रीक्वेंसी मॉडलिंग और डॉपलर शिफ्ट. ओके, कि जो मोबाइल है वो ट्रैवलिंग कंडीशन में है. ओके, सो ऑब्वियसली आपका जो ट्रांसमीटर है, फॉर एग्जाम्पल मैं दीपक को कॉल कर रहा हूं एंड दीपक इन करंट सिचुएशन इज मूविंग. मैं एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हूं जहां से मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं सिग्नल को, एंड दीपक इज रिसीविंग द सिग्नल, सो ही इज मूविंग. उस केस में क्या है कि जो मोबाइल की स्पीड है उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि वहां पे क्या आ जाएगा, आपका रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट आ जाएगा. सेम इन द केस ऑफ स्पीड ऑफ द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स, कि जो सराउंडिंग है वो मूविंग है, और जो मोबाइल केस में भी क्या आ जाएगा, डॉपलर शिफ्ट आ जाएगा. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल. ओके, ऑब्वियसली हमारा जो हम सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं उसकी बैंडविड्थ क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा. सो दीज आर द 4 योर मल्टीपाथ प्रोपगेशन स्मॉल स्केल फेडिंग, जो फेडिंग को अफेक्ट करते हैं. बात करें इसी में फर्दर फेडिंग में, सो यू कैन सी ओवर हियर देयर आर सम डिस्पर्जन. these are the डिस्पर्जन पैरामीटर्स जिन पे बेस हमारा कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझा बताना. सो these are these dispersion parameters are axis delay, mean axis delay and the axis delay spread. ओके, ये तीनों पैरामीटर्स है जो यहाँ पे डिस्पर्जन पैरामीटर, और इन्हीं को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट भी करते हैं. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम इससे पूछी जाती है. ओके, the properties of wideband multipath channel are most commonly quantified by their mean axis delay, that is represented by delay. RMS delay spread is represented by sigma tau. Okay, and this related with the formula that is the summation k equal to जो भी वैल्यू है अप टू जो नंबर गिवन है a square of a square k. Okay, sometimes this is equal to summation of p tau k upon. Okay, ये क्या होती है, actually this is the amplitude, this is the power profile. Okay, this is the time domain करेंगे, so we will see. So जो RMS delay होता है that is represented by secant tau, that is calculated बार माइनस tau बार का होल स्क्वायर.
Okay, so tau bar, this component we all here. Now tau square bar is calculating by this formula, that is the a square k tau square k upon, that is represented by summation p tau k tau square k upon summation of p tau k. Okay, so this is the main delay spread. Okay, now you can see coherence bandwidth. I'm just telling the important topics. Okay, so this while the delay spread is a natural phenomena caused by the reflected and scattered propagation path in the radio channel, the coherence bandwidth BC is defined relation to the RMS delay spread. Coherence bandwidth is the statistical measure of the range of the frequency over which the channel can be considered flat. Okay, अभी हम बात करेंगे कि फ्लैट चैनल क्या होती क्या है. ओके, क्योंकि जब हम फ्लैट को देखेंगे, बट आप ऐसे सर समझ लीजिए कि वो बैंडविड्थ, ठीक है, जिसके थ्रू हमारे जो भी हमारे स्पेक्ट्रल कंपोनेंट, ओके, वो सारे पास हो जाए. ओके, उस चैनल को हम क्या बोलते हैं? फ्लैट चैनल बोलते हैं. ओके, सो एंड दैट इज फ्लैट जो कोहेरेंस बैंडविड्थ, सॉरी नॉट फ्लैट चैनल, फ्लैट चैनल मतलब जो पास हो जाए, that bandwidth is called the coherence bandwidth. So BC equal to 1 upon 50 sigma tau. Sigma tau is the delay spread which we already calculated previously. Okay, that is the definition of the. Now this formula is valid when your frequency correlation is a 9. Okay, so you have to remember whenever this frequency correlation is coming 0.9 above, you have to have BC equal to 1 upon 50 sigma tau, and if this is correlation is above than 0.5, then it will be BC upon 5. You can see over here, the condition is when this is above 0.5. Okay, so these are the two conditions for your coherence bandwidth. Now you can see over here, जो क्वेश्चन आता बेसिस पे आता है. Okay, calculate the mean axis delay, RMS delay spread, and the maximum axis delay 10 dB. Multipath profile given in the figure below. Estimate the 50% coherence bandwidth of the channel. Would this channel be suitable for AMPS service without the use of equalizer? Okay, so एक प्रोफाइल आपको गिवन दे दी कि जो सिग्नल है उसकी प्रोफाइल आपसे पूछा गया क्या कैलकुलेट दी योर आरएमएस डिले स्प्रेड एंड मैक्सिमम एक्सेस डिले. ओके, सो सबसे पहले तो हम क्या कैलकुलेट करना टाउ. ओके, क्योंकि इफ यू वांट टू कैलकुलेट सिग्मा टाउ, सो इफ यू सी ओवर हियर, इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस सिग्मा टाउ, ये वैल्यू ऑफ टाउ बार एंड टाउ स्क्वायर बार. ओके, सो दोनों के फॉर्मूला अवेलेबल है, दोनों की प्रोफाइल हमारे पास अवेलेबल है. 1 पे क्या है वैल्यू, 2 पे क्या वैल्यू है, 3 पे 5, जो 5 पे वैल्यू क्या है वो गिवन है हमारे पास. ठीक है, उससे हम टाउ बार स्क्वायर बार इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो फ्रॉम हियर यू विल गेट दिस सिग्मा टाउ. नाउ क्वेश्चन में क्या है, 50% कोहेरेंस बैंडविड्थ मींस 0.5 इज गिवन, सो ऑब्वियसली यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला b is equal to 1 upon 5 sigma tau. Okay, so from here you can also calculate the coherence bandwidth. Okay, so in this way you can calculate the parameters. Now so important hai, that is your, I'm skipping in the another content. Now the content is small scale fading. Okay, so small scale fading हमने डिस्कस कर लिया. फेडिंग होती है वो कितने तरह की होती है. ओके, सो बेस्ड ऑन द मल्टीपाथ टाइम, दो तरह से हम स्मॉल स्केल फेडिंग को डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट कैन सी ओवर हियर,
based on the multi-path time delay spread और based on the Doppler. So अगर हम मल्टीपाथ टाइम डिले स्प्रेड की तो हम कर रहे हैं तो दो तरह से होती है हमारी जो फेडिंग होती है. एक होती है फ्लैट फेडिंग. So you can see over here flat fading, frequency selective fading. Now the condition of scale fading is when the bandwidth of your signal is less than bandwidth of the your channel. मतलब केवल in this way and जो आपका सिग्नल है वो उसकी बैंडविड्थ कुछ इतनी है. सो जो चैनल की बैंडविड्थ है वो ज्यादा है, जो सिग्नल की बैंडविड्थ है वो कम है. फर्स्ट when the delay spread less than symbol period. Okay, so symbol period को हम रिप्रेजेंट करते हैं tau s से. Okay, so when this symbol period is greater than कांस्टेंट में अगर हम बात करें तो अगर ये दोनों कंडीशन हैं अवेलेबल आपके उसमें सिग्नल में आपका, तो हम कह सकते हैं जो चैनल है वो क्या है फ्लैट. और इसके जस्ट रिवर्स जो सॉरी अपोजिट जो हो रहा है से दी चैनल इज फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग चैनल. और वहां पे जो फेडिंग हो रही है वो कौन सी हो रही है फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट. ठीक है. नाउ दिस इज बेस्ड ऑन द मल्टीपाथ टाइम डिले स्प्रेड. ओके, नेक्स्ट वन बेस्ड ऑन द जो फेडिंग होती है स्मॉल स्केल फेडिंग वो दो तरह से डिफाइन होती है, दो तरह की होती है फास्ट फेडिंग स्लो फेडिंग. जो डॉपलर स्प्रेड है उसमें डॉपलर इफेक्ट की वजह से जो डॉपलर स्प्रेड हो रहा है वो फास्ट है और हाई है उसकी वैल्यू. ये जनरलाइज है मतलब ये अंडरस्टूड है. सेकेंड पॉइंट व्हेन दिस सिंबल पीरियड इज ग्रेटर देन दी. ओके, सो if the symbol period is greater than coherence time, next is band signal variation. जो चैनल वेरिएशन है चैनल का वेरिएशन है वो फास्ट है इन कंपैरिजन ऑफ जो आपका बेस बैंड सिग्नल है. तो वहां पे जो कंडीशन होती है या जो हमारी फेडिंग होती है वो हमारी होती है फास्ट फेडिंग. अब इसकी जस्ट अपोजिट क्या होती है स्लो फेडिंग. मींस लो डॉपलर स्प्रेड हो गया, कोहेरेंस टाइम ज्यादा हो गया सिंपल पीरियड से और चैनल वेरिएशन स्लोअर देन दी baseband signal variation. Okay, so you have to remember only by one. अगर आप ये फ्लैट फेडिंग की याद कर लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग अपोजिट होगा. याद कर लेते हैं तो जो स्लो फेडिंग होगा वो उसके जस्ट अपोजिट होगा. ओके, सो दिस इज योर फेडिंग. फेडिंग कितनी तरह की होती है. ओके, ग्राफिकल अगर वे में जो मैंने अभी बताया वो सारी कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं. फ्लैट फेडिंग के लिए देखो bandwidth of the channel should be high bandwidth of the signal. So you can see over here this is the channel and this is a signal. So जो channel की bandwidth है वो ज्यादा है signal की bandwidth से. So you can represent in this manner also. Okay, और symbol period tau s is greater than the tau. ठीक है. सो इस तरह से आप इसको मतलब पिक्चर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेम फास्ट एंड जो फ्लैट है और सिलेक्टिव है. सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस. ओके, यू कैन चेक फ्रॉम दिस द बुक. ओके, जो यहाँ पे कंडीशंस है जो आप यहाँ पे मैंने ये कंडीशंस बताई थी सेम यू कैन राइट फॉर्म ऑफ द थ्योरेटिकल मैनर. ओके, जो जैसा भी आप अगर देखेंगे सो यू विल फाइंड आउट दी फ्लैट फेडिंग के लिए आपकी बेस बैंड चैनल है. ओके, और वो क्या है ज़्यादा है सिग्नल से.
बैंड वगैरह बात करें। सो इस तरह से आप लिख सकते हैं सेम फास्ट एंड स्लो के बारे में, सेम यहाँ गिवन है जो हमने वहाँ पे कंसीडर की थी। नाउ यू कैन कंसीडर, और आप यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में वीडियो, ओके, कि आप लेट्स सी दिस इज टीएस, टीएस सिग्मा टाउ, जो आपके पीरियड पीरियड हो गया, उसके बेसिस पे भी आप कहाँ पे फास्ट होगी, कहाँ पे स्लो होगी, कहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव होगी, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। ऑल अबाउट योर फेडिंग, मल्टीपाथ फेडिंग, फेडिंग क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में आप डिफाइन कर सकते हैं।